پی ٹی آئی کا صندوق مارچ عمرکوٹ پہنچ گیا ہے اور اس وقت شاہ محمود قریشی خطاب کر رہے ہیں۔ جو سٹیج پہ کھڑا ہے خاموش۔ عمرکوٹ والوں، میں سب سے پہلے تو آج آیا ہوں کافی عرصے کے بعد۔ غلام مصطفیٰ قاشقیری مرحوم آج موجود نہیں ہیں۔ مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ عمرکوٹ کے دوستوں، زین قریشی صاحب نے بھی کہا اور میں مختصراً اس بات کو دہرا دیتا ہوں۔ میں 2013 میں آیا۔ بیٹا خاموش ہو جاؤ پلیز۔ مجھے لوگوں نے کہا شاہ محمود کیا کر رہے ہو؟ سندھ جا رہے ہو؟ سندھ تو پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے، اس کو تو ضیاء الحق نہیں توڑ سکا، اس کو تو مشرف نہیں توڑ سکا، تم کیسے توڑنا چاہتے ہو؟ یہ خواب ہے، دیوانے کا خواب ہے، مت جاؤ۔ خدا گواہ ہے، مجھے لوگوں نے کہا مت جاؤ، تمہاری جماعت غوثیہ ہے، اچھے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مالدار نہیں ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا انتقام برداشت نہیں کر سکیں گے، ان پہ پرچے ہوں گے جھوٹے، جیسے آج ستار سمیجو کو جھوٹے پرچے میں اس کے 2 بچوں کو اٹھایا گیا ہے۔ لعنت ہے تم پر، لعنت۔ ان پہ پرچے ہوں گے۔ جو سرکاری ملازمتوں میں ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہوگی، نہ جاؤ۔ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، اور جتنا عمرکوٹ کا وڈیرا ہے وہ تو سب ان کے ساتھ ہے۔ تم کیا لوگے؟ اور یہاں کے لوگ دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں، یہ نہیں اٹھ سکیں گے، یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بہت مایوس کیا مجھے، لیکن میں نے عزم کیا کہ یار تاریخ بتاتی ہے، ایک طرف حسین کا قافلہ تھا اور بہت مختصر تھا، اور دوسری طرف یزید کی فوج تھی اور بہت بڑی تعداد میں تھی۔ حسین نے سر جھکایا یا سر کٹوایا؟ تاریخ بتاتی ہے، سر جھکایا یا سر کٹوایا؟ سر کٹوا دیا، یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ تاریخ ہے۔ عمرکوٹ والوں، میں نے تب بھی کہا تھا 2013 میں، اور میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، اس مایوسی کے عالم میں، اس گھٹن میں عمرکوٹ اور تھر پارکر کے لوگوں نے مجھے 1 لاکھ ووٹ دیا ان حلقوں میں دھاندلی کے باوجود۔ اور اگر آصف علی زرداری وہ 32 پولنگ اسٹیشن جو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پر ہیں ان کو نہ آگ لگواتا تو تھر پارکر کی سیٹ بلے نے نکال لی تھی۔ آصف زرداری نے 32 جب ان کو پتا چلا، یہ کچھ 12:30 کا ٹائم تھا کہ پیپلز پارٹی شکست کھا رہی ہے، اس نے کہا شاہ محمود کو سندھ سے نہیں جیتنے دینا، چاہے پولنگ اسٹیشنوں کو آگ لگانی ہے تو آگ لگا دو، اور لگائی۔ الیکشن کمیشن آج بھی بڑی آزادی کی بات کرتا ہے۔ میں الیکشن کمشنر سے کہتا ہوں، چیف الیکشن کمشنر سے، چیف الیکشن کمشنر صاحب 2013 کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے، کیا 32 پولنگ اسٹیشنوں کا ری پول آرڈر کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے تو مطالبہ نہیں کیا تھا، میں نے تو کہا شکست میں تسلیم کرتا ہوں، تم جیت گئے، میں ہار گئے، لڑائی کا ہے، ایک جیتتا ہے، ہارتا ہے، میں ہار گیا۔ میں جیتنے نہیں، میں جگانے آیا ہوں، میں جگانے آیا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے، تم جیتتے ہو
नोट से, वोट से नहीं, नोट से। और तुम पे इल्जाम लगाते हैं थर वालों कि ये अपना वोट बेचते हैं। खुदारा मुझे वोट दो न तो इस तोहमत को धो दो कि थर वाला बिकाऊ नहीं है, उमरकोट वाला बिकाऊ नहीं है। शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं, एक सेठ है यहां का, उसको टिकट दे दिया उमरकोट का, वोट से नहीं, हाँ नोट बेपना थे, बहुत नोट थे, और नोट चलाए। यार आप बैठ जाओ प्लीज, आपको किसी तरह समझाऊंगा मैं, आप बैठ जाए, आप प्लीज बैठ जाए। वोट नहीं थे उसके पास, नोट थे। नोटों के बलबूते पर उसने खरीदे, और बदकिस्मती से कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ छुप जाते हैं। मैं आज 2023 से पहले जमाते गौसिया के जो मुतक़िदीन हैं उनसे एक गुजारिश करने आया हूं। जिसने तहरीके इंसाफ को और मुझे छोड़ना है वो आज छोड़ जाए, आज छोड़ जाए। छोड़ जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, डर जाओ, घुटने टेक दो, घुटने टेक दो ताजपुर के सामने, और घुटने टेक दो थर पार करके एमएनए के सामने। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। कुछ मेरे जानने वाले गौस के मुतकिद, उनके दाएं बाएं मैं देखता हूं आजकल तस्वीरें लगती हैं, क्या हुआ, बिक गए, बिक गए। यार जिसने मुल लगवाना है लगवा लो, आज तंदूर गर्म है, फुल्का लग जाएगा, लगवा लो। मेरा वजूद, मेरा वजूद, मेरा वजूद, मेरा वजूद। तो तंदूर गर्म है, फुल्का लग जाएगा, लगा लो, इजाजत है। अच्छा एक और, चलो एक और तुम्हें छूट दे देता हूं, नोट उनसे ले लो और वोट तहरीक इंसाफ को दे दो। ये सौदा बुरा नहीं है, ये बुरा सौदा नहीं है। नोट पीपी का, वोट इमरान खान का, यह है फॉर्मूला जो उमरकोट और थर पार करके गयूर लोगों ने करना है। करोगे, करोगे? है हिम्मत? नहीं है हौसला, हिम्मत, जज्बा, जुनून, ईमान, ताकत, कुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर घबराना किस चीज का? खान तो वैसे भी कहता है घबराना नहीं। तो मैं खान की बात करने आया हूं उमरकोट में। उमरकोट वालों, जरदारी से घबराना नहीं। मजे की बात है, बिलावल तकरीर करता है और पीछे से इमरान खान की आवाज आती है, घबराना नहीं। क्योंकि उसको लग रहा होता है कि बच्चा घबरा रहा है, बच्चा सिल मिला गया है। देखो ना, छांव का पला हुआ धूप में कैसे खड़ा होगा। हमारी सराइकी में कहते हैं छां दघा। सो मेरे दोस्तों, इनको तो पकी पकाई मिली, बनी बनाई मिली। मेहनत किसने की और हुकूमत किसने की, जदोजहद किसने की और सेहरा किसके सर आया, पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है। लेकिन उमरकोट वालों, आज तुम्हारे हकूक की तहरीक में निकले हैं, दयानतदारी से बताओ। हम तो हार गए ना, हम तो हार गए। चलो जैसे हराए गए या हार गए, मैं मानता हूं हम हार गए। वो जीत गए, उनको मुबारक हो जीत। हमने हार तस्लीम कर ली। हमने हार के भी तुम्हारे गले में तरक्याती कामों का हार डाल दिया, वो जीत के भी मुंह फेर गए। आज पूरे थर पार कर, अरबाब साहब कितनी आबादी होगी जिले की किबला? थर पार कर जिले की आबादी कितनी होगी? 15-16 लाख की आबादी अरबाब साहब कह रहे हैं। आज
अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने उन 16 लाख कुंभों को घर घर सेहत कार्ड यानी कि 10-10 लाख रुपया इलाज के लिए उनको दे दिया है। वो अपने शनाख्ती कार्ड के बलबूते किसी अस्पताल में, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जो मंजूर शुदा है, जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं कहूंगा शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया। मैं छाछरो लाया था, खान से ऐलान करवाया था, आज उस ऐलान को अमली शक्ल मिल गई है। अब वही ख्वाहिश थी मेरी कि साथ उमरकोट है, उमरथक मिल जाए। जब सिंध हुकूमत ने देखा कि थर में ये जो सेहत कार्ड इमरान खान का बट रहा है और उसने एक हलचल मचा दी है, तो सिंध हुकूमत ने कहा हम किसी और सूबे में इसकी इजाजत नहीं देंगे। क्यों वजीर आला सिंध, क्यों आप क्यों इन गरीबों का हक मार रहे हैं? वफाकी हुकूमत इनको हक देना चाहती है, आप इनसे हक क्यों छीन रहे हैं? मैं उमरकोट ये पूछने आया हूं, मैं पूछने आया हूं, ये सवाल लेकर आया और सिंध की हुकूमत से सवाल करना चाहता हूं। जवाब है नहीं उनके पास। 9,000 अरब 14 सालों में इनके खजाने में मुंतकिल हुआ। मैं नहीं, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है कि 1400 अरब का उसमें से गबन हुआ, गबन। यानी कि इनके वजीरों, मुशीरों, एमएलए और एमपीएस की ठेकेदारों से मिली भगत से इनकी जेबों में गया। तुम्हारा पैसा जो तुम जीएसटी की शक्ल में अदा करते हो, पैसा तुम्हारा, तिजोरी उनकी। कब तक बर्दाश्त? गुर्बत की लकीर में रहने वालों, गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारने वालों, कब तक ये तुम्हारे खजाने पे डाका डालते रहेंगे और तुम खामोशी से बर्दाश्त करते रहोगे? और सब्र करने की हिम्मत है? और सब्र करने की हिम्मत है? बताओ यार, ये पढ़े लिखे नौजवान भी तो खड़े हैं ना। और सब्र कर सकते हो और इंतजार कर सकते हो मेरे दोस्तों। हां, हर खिज़ां के बाद बहार आती है और हर बहार का इंसान मुंतजिर होता है, लेकिन ये तो खिज़ा ऐसी है जो 15 बरसों से है, 15 बरसों से खिज़ा है सिंध पर। मैं चाहता हूं कि 2023 में अल्लाह की रहमत से, उसके हबीब के सदके और अवाम की ताकत का सरचश्मा है, उसकी बदौलत सिंध में बहार आ जाए। लाओगे बाहर, लाओगे बाहर? देखना चाहते हो नए गुंजे खिले, देखना चाहते हो? हां, देखना चाहते हो? अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हो? इनके मायूस चेहरों पे मुस्कुराहट देखना चाहते हो? इनकी नाउमीदी को उम्मीद में तब्दील करना चाहते हो? इस अंधेरे को उम्मीद के दिए से रोशन करना चाहते हो? चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? मुझे समझ नहीं आ रही। क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे यार? तब्दीली लाएंगे, लाओगे? नौजवान तू भी लाएगा, बेटा तू भी लाएगा, बेटा तू भी लाएगा, बेटा तू भी लाएगा, सब तब्दीली लाओगे। अगर तुम तब्दीली लाओगे तो ठप्पा किस पे लगाओगे? मैं तो मैं तो 13 में भी कहा था, 18 में भी कहा था, ऊपर अल्लाह नीचे, ऊपर अल्लाह नीचे। अल्लाह तो था और है। मुझे बल्ला नजर नहीं आया? आया 1 लाख बल्ला नजर आया, लेकिन उस बल्ले के पीछे कुछ बिल्लियां भी लग गई थी और उस बिल्ली ने बल्ले का हक चुरा लिया। बिल्ली ने बल्ले का हक खा गई। क्या अब उस बिल्ली को
मजीद म्याऊं म्याऊं की इजाजत दोगे? अगर आज उमरकोट की अवाम का ये फैसला है तो फिर मैं कह रहा हूं, कह लूं कि ना कहूं? यार पर्दा रहने दो ना, पर्दा रहने दो। ये ना हो ये मुझे ये कह रहे हैं कि बड़ा जालिम है यहां का एसपी, कई दोस्त को कह रहा था, ये ना हो कि मैं जाऊं तो तुम्हें धर ले, हाँ तुम पे पर्चा कर ले। अच्छा एक वादा करो मुझसे, अगर किसी नाजायज तहरीके इंसाफ के कारकुन पर इस जालिम एसपी उमरकोट ने पर्चा किया, मिलकर थाने का मुहासरा करोगे? उसका हक और उसको आजाद करवाने के लिए थाने के दरवाजे पहुंचोगे? तो सुन लो एसपी साहब, चोरों को पकड़ो, गरीबों पर जुल्म मत करो। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये हुकूमत के नशे से बाहर आओ। नाकाम है वो लोग जो हुकूमत की सियासत और हुकूमत की बैसाखियों पर हुकूमत करते हैं, जो जुल्म और जबर से अपने इक़्तिदार को तूल देते हैं। आज उस इक़्तिदार को दफन करने का वक्त आ गया है। आओ मिलकर, आओ मिलकर इस इक़्तिदार का जनाजा निकालें, और जब इस तीर का जनाजा निकल रहा होगा तो फिर कह देना, वो देखो किस धूम से आशिक का जनाजा जा रहा है। सुनो, नहीं चलाओ चलाओ चलाओ, समझ आई क्या कह रहा है? कह रहा है तीर को जब तोड़ोगे तो सिंध को तब जोड़ोगे। अब चलाओ। तो फिर आओ अपने अज़्म से, अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से, अल्लाह के भरोसे से तीर को तोड़ दो और अपने अरमानों को जोड़ लो, समेट लो और उम्मीद का नया दिया जलाओ। मैं क्योंकि मैंने मिट्टी जाना है और वहां बहुत धूप है, यहां से भी ज्यादा है, और लोग सुबह से खड़े हैं, मुझे फोन आ रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लाल माली साहब, मेमन साहब, तहरीक इंसाफ की तंजीम, जिलाई, सूबाई, हुर जमात का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पीर साहब ने मैं भूल नहीं सकता, और वो इंसान एहसान फरामोश है जो मोहसिन के अच्छाई को भूल जाए। पीर साहब पधारो, मैं भूल नहीं पाऊंगा बेटा एक मिनट कि आप मेरे इलेक्शन जलसे में उमरकोट आए थे और आपने मेरे लिए वोट मांगा था। मैं आज भी भरी महफिल में पीर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कोई बात नहीं, नतीजा जो भी निकला, आपने मोहब्बत में कमी नहीं की, आपकी हुर जमात ने हमारा पूरा साथ दिया, और इंशाअल्लाह मुझे भी आपका, आपके आस्थाने का, आपकी दरगाह का और आपकी जमात का पूरा एहतराम है और रहेगा। मैं यहां की अक़लियतों को, खास तौर पे अपने हिंदू भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि आप बड़े हौसले वाले हैं। और एक बात कहता चलूं, हाँ, जैन ने बताया कि आज हम में जादम मंगरियो भी मौजूद नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में जगह दे। सबने चले जाना है यार, वो चले गए, हमने भी चले जाना है। अल्लाह उनको
उमरकोट के ये मनाजिर आप देख रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी जलसे से खिताब कर रहे हैं। हुकूक सिंध मार्च जारी है। वज़ीर आला सिंध ने सेहत कार्ड की मुखालफत की। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ऐसा कहा गया, अगर आप तब्दीली लाएंगे तो ठप्पा किस पर लगाएंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।